how there was huge uh, problem with these students we are facing. There was huge learning gap, a lot of things, like the students are mentally stressed. All these students, because we know they could not study well. Students from KG to PG, I would say, that is from kindergarten till university level, students are facing problem across the world because Sure. So is it financial issues? Is it money issues? Is it funding? Is it lack of teachers which have caused this? What is the cause? pardon, teacher, I could not get you. Yeah, I was saying, what is the cause? Why is this issue arose? See, this issue arose because, especially in India, and I don't know about other countries, but in India, since past 2 years, the schools were closed, schools and colleges were shut down, because of the pandemic, and the students could not. In many schools and colleges were turned into even quarantine centers, COVID centers. So all many of the schools were closed, and students could not go to school and college. And now these students have to face board exam. Hardly they could study for 1 or 2 or 3 months, all these board students, and now they have to appear for exam. They have lost practice of writing, they don't have the practice of writing the paper. So now the board exams are very crucial, like A level exams and other exams in other countries. So now these students are requesting honorable PM of our country, that is Modi ji, to help these students and evaluate them as per their internal assessment, that is Yeah, I whatever. think I think what happened in the UK, we had some of the same situation. But what happened when the pandemic? Well, we're still in Right. a pandemic. But what happened here in the UK? They were marked on their sort of assignments, their coursework, so they were graded, on their coursework and their assignments. Instead of going for an exam, they were graded that way. Yes, yes, absolutely. Many countries are following this for maybe another 1 year, I suppose. They will have to do the continuous assessment, and students should be assessed and evaluated as per school assessment grade, teacher assessment grades, because teachers are the ones who know what all these students have faced, maybe So, financially. so, so are the students asking for extra support, or are the students asking for the exams to be delayed? No, 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 that is not the scene. Some students want that the exam should be delayed, but they don't know what will be the outcome. What will be the see once the exams will be delayed for another 2 3 months, what will happen? The admission process in universities in India and abroad also will be delayed. In universities in other countries, they will start their academic year soon, maybe by month of September. So all the students in our country are going to lose. Like since last 2 years, some students could not take admission in university in other countries, so that's why we are requesting, and we have also moved our PIL in Supreme Court. We are also requesting Honorable PM to declare the results of these students as soon as possible through internal assessment, so that students will be graded as per their internal assessment, and they will be ready to appear for different exams, entrance exams of different universities, which will be happening in India and other countries also. And there are several other exams also in our country for seeking admission in engineering colleges like IITs. We have NEET exam for MBBS students, medical students. So they have to prepare for those exams also. These students need time. And then the academic year will start from this year onwards by say September. That is what we feel. What is happening, Mr. Kevin, is since past 2 years, the academic year of the university student, college going students is happening since December. Now it is so much delayed that the academic year is starting from December. And now they have a semester system like in college, in other universities also. There's semester of 6 months. Now in university, these students will be going to universities also. So their course will be completed in just 2 months. Now in India, the students which are facing problem in universities and college and IITs and medical colleges, that in 2 months they have to complete the portion of 6 months. So this is a long thing. Like all these students are going to face after 4 5 months, these issues will arise, which is happening in 2 years. So now we are requesting Honorable PM to intervene and declare the result as soon as possible, maybe within 10 days or 15 days maximum, and the students be evaluated and graded as per their internal assessment grades, and then they can further move ahead and take admission, apply for entrance exam, and their admission process will be on time.
So this is Sure, our, sure. this is the problem. Can I ask a question? Have you got a petition set up? Yeah, the petition in Supreme Court, which we have filed, the petition is also like the our main prayer and main plea is that the students or board students should be evaluated as per internal assessment. It happened last year also. Honorable PM of our country, Modi ji, intervened. He took a meeting, and within one day, he took a call that all the students will be graded as per internal assessment, CBSE board students. So accordingly, other boards also followed him. And this year also, we are just praying that Modi ji will intervene and help all these board students. Even though our matter is in Supreme Court, but our prayer is same that please evaluate these students as per internal assessment grades, and then they can move ahead and take admission. There should be a deadline for declaration of result, and also as far as the admission is concerned, in our country there should be a deadline. Like there is in other countries also, there's a deadline that by this date you have to apply for admission. Yeah, sure. Yeah, it's happened in the UK where it was, sort of resolved where people were internally assessed by their mock exams or their, assignments and coursework. So it should happen in other countries. I totally agree. So I'll send him a tweet. I'll tweet him to see if he can, to intervene. But I wish you all the best. And if there's anything I can help with, please do let me know. Thank you so much, Mr. Kevin, for supporting Indian students. And these students are not studying only in India. We have more than, we have branch, CBSE has branch in more than 28 countries. Even ICSE, we have IB board also, we have Cambridge board. So the students are studying in other countries also. So they will also be benefited. So I'm really grateful that you are supporting our cause, and these students will be very grateful. So few lines from your side to motivate all these students who are depressed mentally and they are under a lot of pressure. If you can just motivate all these students. Well, yeah, I would just say, just think positive and just pray and hope that things will change, and I'm sure they will. The more campaigning you do, and as a campaigner here in the UK, the more campaigning and pressure you put on officials, the bigger the voice will be heard. So, if there's more voices, then take a stand and fight your corner. And I'm sure with so many voices, you will definitely be heard. I hope that gives some sort of reassurance. Thank you so much, Mr. Kevin, for your kind words. And now I would request Dr. Ashish to say a few words to all these students. Definitely, well, it is really good. So big personality is also ready to support. Like Mr. I would like to thanks Mr. Kevin. People like them, if they are with students, so definitely it will be a great help to the student. And we are very much positive regarding this case, and hopefully we will get very good news with all your support, ma'am, and Gopal sir and Himanshu and everyone. We are waiting for good news. We have to be positive person. Definitely, we will get achieve the goal. If anyone else would like to say anything, they are most welcome. I have not accepted request. There are so many requests which are pending. So, Palji, if you can see Himanshu. Ma'am, yes, yes, I'm giving. Pradeep ji, I have sent you speaker request. Pradeep ji, if you can hear me. Pradeep ji is the founder of Gurgaon Parent Association, and he is working very hard since many years. And recently, with our Twitter campaign, with his support, we could get the board exam of 8th and 5th standard cancelled in Haryana. And government intervened, and students were very happy, and parents were very happy that because of the Twitter campaign, government of Haryana intervened, and they
cancel 5th and 8th board exams. Pradeep sir, already request has been sent. If you're facing any glitch, you can leave and then again join. Then we'll ultimately end up as a speaker. Leave the space once, then you can again join. I think there is a glitch in the space. Yes, Calista. Hello. Can anyone hear me actually? Yeah, We please can go on. hear you, Philip Callis. Calista, go ahead. You're audible. So students, just to remind you again, there's a Twitter campaign today at 6 p.m. onwards. The hashtag is hashtag Modiji help board students. And you will have to use these hashtag and tag Modiji, our Prime Minister, and request him to support. He has supported us last year, and I am quite hopeful that Modiji will definitely intervene and support us this time as well. And also one more point to add, while tweeting from 6 p.m., please only use Modi ji help board students. Don't use old hashtag. Okay, just use this hashtag and just please tag PMO handle and Prime Minister Narendra Modi's handle. And Mr. Okay. Kevin has also supported us. He's also going to request PMO. So I am really thankful, Mr. Kevin, that he will be requesting and will be discussing with our PMO to help board students. Thank you so much. Yes, Philip Calista. Are you you can now speak. Okay, till the time uh, you speak and you can say a few words. I'm not sure if you're not able to speak or the phone is muted. I would just like to add, see, a lot of students are getting confused. I can see messages from some private students and from other students. There is some, I think, communication gap or some incorrect narrative. Uh, See, we are talking, what ma'am has clarified, that we are talking here is uniformity in result, uniformity in assessment. Result means that she has time and again said that she has specifically asked that result जो है that has to be एक time bound manner में उसका declare किया जाए, और assessment जो as far as the mode is concerned, that is internal assessment. So we are asking for uniformity. इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ उसमें कुछ का डिले हो जाएगा या बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा. So this fight is for all the students. ये ऐसा नहीं है कि किसी एक बोर्ड के लिए है या एक राज्य के लिए है या एक स्टेट के लिए है या सेंटर के लिए है या किसी और के लिए है. सबके लिए कलेक्टिव फाइट है ये. सो जिससे भी बात होती है, यू नो, whosoever is in touch with you, जिनसे भी आप मिलते हो, जिनसे डिस्कशन होता है, please tell them that this is what our key ask, this is what we are requesting. We have Mr. Shadab Siddiqui, who is I think who is activist, filmmaker, and he is a speaker also. So I would request you to kindly motivate all these students who are really Hello, Anubaji. This is facing Pradeep lot of Rawat. problems. Now I can speak. Can you guys hear me? This is Pradeep Rawat. Yeah, Pradeep Hello. ji, you're audible. Yeah, actually there was some problem with the connection. I was trying my level best, but I had to, literally reinstall the app and join again. Anyways, thank you so much everyone for, arranging this beautiful session. And I could join late because I was a little busy with my office work, but whatever little I could hear, Mr. Kevin was there. And as obvious, Anuba ji is an excellent. I basically call Anuba the tigress of parents, and she's the one
who's literally leading this campaign, all over India, and now it's become a kind of a pan world campaign where every student, every parent, is basically able to understand what we want and how do we want to achieve it. I always believe unity is strength, unity is power, and the day we decide that yes, we want to achieve something, a lot of things can be achieved. People like Anubaji, Sukhpal, Himanshu, Professor Ash Mahendru, and there are so many students, so many parents who are basically trying their level best to change the face of education in India. And I always believe this so-called colonial system education needs to change, and that reform has to come from within. Normally, what happens is the systems are basically forced upon us. I mean, somebody who doesn't know much about education, he tells us what to do, what not to do. So what I believe is, once this kind of a feeling is developing among the parents, among the students, and the educated lot in India, that yes, education needs a change, education needs a reform, where students are able to understand, parents are able to make them understand that what is good for the child, what is best for the child. And for the last 2 years, the situation, everybody understand that children were not able to go to the school. And one thing nobody even rather discuss, not many people discuss, there are students, there are kids who had no access to the internet, they had no access to the telephones, or they had no access to the what you call the mediums to study, and they had hardly any education for the last 2 years, and suddenly asking them to go for an offline exam, and that too a very important exam like a board examination. It's kind of atrocious. This is what I feel. So the PIL moved by Anupaji in the Supreme Court regarding this cancellation of board exam, and giving the children option of internal assessment is a very good thing, simply because in a very short period of time, until and unless the results are declared, there will be the multiple examinations for the universities and the competitive courses, competitive colleges, etc. And if that doesn't happen in the right time, then again this dominoes effect will further put down the status or the standard of the study in India. So what I believe, we need to be together, we need to work as a team and help support each other no matter what. Basically what happens is, if a parent or a child is having an issue, he should be able to share it with, if not with his parent, and maybe he's not he's feeling hesitant enough to share the issue with the parent, that he can share it with another parent, another volunteer, either a student or a parent. So this is what I believe. Once we start working as a team, once we decide that yes, we are together, and that kind of feeling can move mountains. I always believe unity can do anything, and if the course is right, if the right is the path is righteous, then everything is achievable. I always believe that even the word impossible says I am possible. And recently, with the guidance of Anubaji, my friend like Sukhpal, we were able to achieve a small milestone, that we were able to ask the government to change the decision regarding the fifth and eighth board examination in Haryana. And I believe the campaign, which is focusing now on Supreme Court, as well as our honorable Prime Minister Modi ji, that yes, he can bless us. Like last time, we ran a successful campaign, in which campaign he was the one who blessed children with the cancellation of exam and then allowed internal assessment. So hopefully this time we too will continue together. My only request to the students especially is, please, 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 whenever you use any tweet or any language, the language should be absolutely parliamentary. We should never disrespect anyone. Forget talking about the big leaders or anybody else. Our language, no matter what, should always be parliamentary. We should be respectful, and if we do that, even the people who don't like us, even our adversaries, they will also appreciate us. I always believe, प्यार से आप दुश्मन का दिल भी जीत सकते हो. Thank you so much, Rupa ji. Back to you. Thank you. थैंक यू प्रदीप जी फॉर ऑल दिस स्पीच, मोटिवेशन देने के लिए बच्चों को, इतना जो बच्चे हैं डिप्रेस्ड हैं. एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर शादाब सिद्दीकी जी to मैम। please जी say जी few words and motivate these students. जी नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो सभी भाइयों बहनों और दोस्तों को, और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट होते हैं वो किसी भी देश या किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और अगर स्टूडेंट की पढ़ाई लिखाई या उनकी चीज़ों में अगर कोई कमी आएगी तो समझ लो हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो इंसान की जब रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो इंसान चल फिर नहीं पाता है, वो विकलांग हो जाता है। उसी तरीके से जब हमारे पास शिक्षा नहीं रहेगी तो हम सब विकलांग हो जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे हर मामलों में,
हर जगह। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, कोई भी सरकारें रहें, हर सरकारों को सोचने और समझने की ज़रूरत है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। शिक्षा हमेशा ऊपर रहना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है। थैंक यू सो मच। एंड मेरा हमेशा से सपोर्ट रहा है एजुकेशन को लेके, और मैं हमेशा करता रहता हूँ, और मैं आप लोगों को सुन भी रहा हूँ और मोटिवेट भी मैं खुद भी हो रहा हूँ। और जो हमारी एकता है, अखंडता है, उसमें बहुत ताकत है, और हम लोगों को संयम से, धैर्य से कोई भी काम को करना चाहिए। और बातचीत से ही दुनिया के सारे मसले हल होते हैं। जब दो लोग टेबल पे बैठते हैं तो वो सारी बातें निकल के आती हैं जिन बातों पे हमारा अपना मतभेद होता है। तो बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है, और ये बातचीत का जो सिलसिला ट्वीट के ज़रिए भी चल रहा है, तो ये मुझे लगता है बहुत काम करेगा, और इंशाल्लाह आगे स्टूडेंट की सारी प्रॉब्लमें भी सॉल्व होंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच शादाब जी, आपने इतने अच्छे से बच्चों को मोटिवेट किया। एंड यस, यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिकॉज ऑफ students unity we could achieve so much. Last 2 years we could get so many relief from government, state government and even central government. उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमें हर तरीके से। तो आई जस्ट होप दिस टाइम ऑल्सो दे विल सपोर्ट, और आप लोग की यूनिटी से जरूर कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा बच्चों को। दैट्स व्हाट आई फील। एंड जो कैंपेन है इसमें सब सपोर्ट करें। यू ऑल शुड टेक पार्ट इन दिस कैंपेन, एंड इफ एनीवन एल्स वुड लाइक टू से एनीथिंग, दे आर मोस्ट वेलकम। और हिमांशु आप ले सकते हैं, कोई और भी अगर स्पीकर हैं। यस मैम। तेजस हैं, तेजस एंड ईश्वरी। Hello, So we Anu can ma'am. get more speakers. Yes, Tejas. Ma'am, I was saying कि 11 का क्या? देखो बेटा, 11th ऑल्सो वी हैव इंक्लूडेड, हमने 11th को भी इंक्लूड किया है पीआईएल में, बिकॉज लास्ट ईयर 11th को इंक्लूड नहीं किया था हमने पीआईएल में। तो जज सेड कि वी आर नॉट गोइंग टू इंटरवीन। तो बट यस, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, जब मोदी जी ने इंटरवीन किया था, तो 11th का भी जो एग्जाम है वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे ही जो है उन बच्चों को एवेल्यूएशन हुआ था। तो लेट्स सी दिस टाइम व्हाट हैपेंस। वी हैव इंक्लूडेड 11th ऑल्सो। लास्ट ईयर भी बच्चों का इंटरनल असेसमेंट हुआ था, बट देर आर सम स्टेट्स लाइक Andhra Pradesh and Kerala, they have board exam in 11th. So especially for them also, we are requesting that those board exams also should be held in, should not be held in offline mode, and the students should be evaluated as per internal assessment. तो हमने उनको भी लिया है। सीबीएसई के लिए भी अब क्या डिसीजन आता है, that we will get to know maybe in coming days. But मैम हमारे एग्जाम्स 4th मार्च से शुरू होने वाले, हार्डली 10 डेज बाकी है। हाँ देखिए, as far as 11th is concerned, not only 11th, even board exams are starting in Maharashtra, in Chhattisgarh from first week of March. It's not only 11th, important exams like 12th, they are also starting from first week of March. So you're just hopeful कुछ ना कुछ हमें decision मिले जल्दी. That's why your Honorable Supreme Court intervened immediately. Chief Justice of India intervened yesterday, and we got a date today itself. And Justice Khanvilkar sir, he also said that tomorrow we are going to take it up, and we will first hear CBSE and then later on other boards. So आप लोग just hope करें कि सब अच्छा हो and campaign run करें. That will definitely help. That is what I feel. मैम 11th वालों का क्या है? हम बीच में फंसे हैं, ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं। देखिए, एज ऑफ नाउ तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग स्टडी करें। इवन आई एम टेलिंग बोर्ड स्टूडेंट्स ऑल्सो कि प्लीज आप, यू ऑल शुड स्टडी। वी आर डूइंग वॉट एवर बेस्ट वी कैन फॉर बोर्ड स्टूडेंट, 11th स्टूडेंट, एवरीवन, बट एट द सेम टाइम यू कीप स्टडिंग। क्या डिसीजन आएगा इवन वी डोंट नो। तो पढ़ाई आप लोग करते रहें। देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनके पास दे डोंट हैव गैजेट्स ऑल्सो, दे आर मतलब दे कैन नॉट कनेक्ट ऑल्सो। आप उनको तो, आप लोग ट्विटर में हैं, वो बच्चे तो हमारे पास पहुंच भी नहीं सकते हैं। They don't have that facility to connect with other students or even with us. तो हम लोग उनके लिए भी कर रहे हैं fight, but at the same time I would request everyone to please study, focus on your studies also, because it is going to help you in future also. Your entrance exams are lined up, तो वो आपको help करेगा। तो आप प्लीज पढ़ें। और जो भी है, सरकार, मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने लास्ट 2 years में बच्चों को सपोर्ट नहीं किया है। दे हैव सपोर्टेड, नो डाउट, बट उनके भी कुछ व्यूज होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली कोर्ट में जाके फिर मामला जो है डिसाइड होता है। एंड मोदी जी जो है, पीएम भी जब इंटरवीन करते हैं तो फिर बहुत लोग उसको सीरियसली फिर लेते हैं। तो लेट्स होप पीएमओ इंटरवीन्स, एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी इंटरवीन इन दिस मैटर। तो आप लोग पढ़ाई भी करते रहें, कीप
focusing on your studies, and best wishes for all the students. Future में government is going to help you. ऐसा नहीं है कि they will just say कि no, we will not help you. They will help you out. Last 2 years में help किया, अभी भी help मिलेगी आपको. That is what I feel. Immediately, मैम just see na, Haryana government immediately in 2 days of the campaign, immediately they have cancelled 8th and 5th board exam because it was possible for them. But as far as 10th and 12th is concerned, they will take time. They will discuss with lot of educationists and lot of teachers and professors. बहुत सारे discussion होंगे उसके बाद they are going to take a call. And now since the matter is in Supreme Court, so I think state governments भी उसके ऊपर decision लेंगे. 3 state governments have already postponed their exam when the petition was filed in Supreme Court. That is Rajasthan government and Haryana and Gujarat. So they are also going to wait now, see what happens in Supreme Court, and accordingly they will take a call. ओके मैम, थैंक यू। यस तेजस, देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, सीजीआई सर जो है, as far as Supreme Court is concerned, CGI sir, or as far as a country is concerned, Prime Minister मोदी जी जो है, यही जो है वो सबसे बड़े हैं। इन दोनों के पास ही हम लोग गुहार लगा रहे हैं। उससे ज्यादा जो है वो क्या हो सकता है। एक जो है जस्ट टू लाइटन अप द मूड, मैं 2 लाइनें पढ़ देता हूँ इससे पहले कि मैं इजाजत लूं मैम से। मैम आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ 2 लाइनें कहता हूँ। परेशानियों से भागना आसान होता है, परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में ही तो जहान होता है, मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में ही तो जहान होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुखपाल जी, बच्चों को इतना अच्छा आपने मोटिवेट किया है। इवन अदर्स आर हैव मोटिवेटेड दी स्टूडेंट्स, आई एम रियली ग्रेटफुल। और अभी पवन जी भी हैं, यूपी से हैं, ये काफी इसमें करते रहते हैं, सपोर्ट बच्चों को भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को भी कर रहे हैं। तो पवन जी आप भी बच्चों को मोटिवेट करें, उनको गाइड करें, क्या उन्हें जो है आगे करना है। पवन जी क्या सुन पा रहे हैं आप? हेलो, हाँ मेरी आवाज पहुंच रही है? यस। हाँ हाँ, सबसे पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार और स्पेशली थैंक्स, जैसे कि अनुभा मैम है, सुखपाल सर हैं, हिमांशु सर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं कि जो स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं और हर वक्त, चाहे रात हो दिन हो, हमेशा लगे हुए हैं स्टूडेंट्स को के लिए। तो ये स्टूडेंट का बड़ा सौभाग्य है सभी विद्यार्थियों को कि आपको अनुभव मैम या सुखपाल सर या हिमांशु सर जैसे लोग हैं जो लीड कर रहे हैं तन मन धन तीनों चीज़ों से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर, अभी जैसे रात एक बच्चे का मैसेज आ रहा था कि सर सुसाइड करने का मन कर रहा है। तो कई बारी मुझे पता है कि बहुत ही इस टाइम पे जो टाइम है बहुत डिफिकल्ट है, और इस टाइम को हम जितने इस टाइम को अगर हम बियर कर लेंगे, और कई बार अनुभा मैम ने भी बताया कि ये सिर्फ लाइफ का 1% पार्ट है, बहुत बड़ी चीज नहीं है बोर्ड, और कोई कुंभ का मेला नहीं है कि इस बार अगर चलो बोर्ड हो भी जाता है, जबकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान पर और गॉड पर और अपने लीडर्स पर जो भी लीड कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर 1% पॉजिटिव रिजल्ट नहीं भी आता, चलो मैं ये मान के चलता हूँ, तो कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, कुंभ का मेला तो है नहीं कि भाई आपका सब कुछ खत्म हो गया। अभी उस दिन अनुभा मैम ने भी बताया था कि उनका बोर्ड के अंदर कोई बहुत अच्छा परसेंट नहीं था, आज आप देख रहे हैं। आज मैं तो ये मानता हूँ कि देश की सबसे बड़े लॉयर्स में से मैं एक समझता हूँ उनको, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतनी अच्छी इंसान है कि दिल से आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो अगर रिजल्ट नहीं भी आता तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों से, सभी स्टूडेंट से ये बोलना चाहूंगा कि ये जो जिंदगी है ना, इसके अंदर तो ठोकरें आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी,
और बहुत सारे लोग हैं जो ड्रीम्स जिन लोगों के बर्बाद हो जाते हैं। अभी मैं जहाँ रहता हूँ ग्रेटर नोएडा में, तो मेरे साथ में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, जेपी ग्रुप, आपने शायद नाम भी सुना होगा, पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका नाम है। उनका बिजनेस डूबने की कगार पर है, तो वो तो सुसाइड कर सकते हैं फिर तो हम चीजों को ना समझना पड़ेगा और चीजों को फेस करना पड़ेगा। ये डिफिकल्टीज तो आती रहेंगी लाइफ में, ये तो शुरुआत है। तो इनको आप डिफिकल्टीज को फेस करो और आगे बढ़ो और बढ़ते रहो, और लोग रोकने वाले मिलेंगे आपको, पूरी लाइफ के अंदर मिलेंगे। ये तो एक बोर्ड है, ये भी एक रुकावट है। अगर ठोकर लग भी गई तो खड़ा होना सीखो और फिर से उसको फेस करना सीखो। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ऐसी थिंकिंग अपने माइंड में कभी भी कोई भी बच्चा ना लेकर आए। कोई दिक्कत है मुझे रात में भी कॉल करोगे, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। और पढ़ाई से रिलेटेड जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, हम लोग पूरा सपोर्ट में हैं आपके, तन मन धन तीनों चीजों से, मैं तो ये बोल के चलता हूँ। और बाकी आगे जाके आप ही सफर नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे सफर कर रहे हैं। आपको तो जब भी थोड़ा सा, मैंने अभी देखा है कि जो बीटेक वाले बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनका, और या एलयू के बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे, सिर्फ उनको 1.5 महीने टाइम मिला पेपर देने के लिए, और उन्होंने पेपर भी दिए। हमने बहुत मेहनत की, नहीं हुआ कुछ। तो ऐसा तो नहीं है उन बच्चों ने सुसाइड की तरफ कर लिया। क्यों? क्योंकि वो बीटेक या इंजीनियरिंग या लॉ या कौन कर सकता है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स को फेस करने की क्षमता होगी। और वो, ये तो आप लकी हैं। मैं तो ये मानता हूं कि आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखाया जा रहा है और आप सीख रहे हैं और उनसे लड़ रहे हैं। तो हमेशा लड़ते रहिएगा प्रॉब्लम से। और जिस लाइफ में प्रॉब्लम ना हो तो वो लाइफ जीने का आनंद ही नहीं होता, मेरा तो मानना ये है। तो आप प्रॉब्लम्स को फेस करते रहिए, बाकी तो बहुत अच्छे आपको लीड करने वाले मिले हुए हैं। और आप हमेशा ये भगवान को प्रे कीजिएगा कि अनुभा मैम जैसे, सुखपाल सर हैं, हिमांशु सर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके शुभ चिंतक हैं और हमेशा आपके साथ हैं। तो अनुभा मैम, सुखपाल सर और हिमांशु सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे भी बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पवन जी। एंड रिसेंटली जो पवन जी के बारे में मुझे पता चला, बट मुझे भी ऐसा लगता था कि ही इज ऑल्सो लाइक अदर यूट्यूबर्स। इनिशियली मैंने बोला भी था इस बारे में कुछ लोगों को कि ये भी मुझे वैसे ही यूट्यूबर लग रहे हैं जो हमेशा होते हैं। बट फिर अभी रिसेंटली मैंने जब उनके देखे जो यूट्यूब वीडियोस हैं, मिसलीडिंग नहीं है बिल्कुल भी, वो मोटिवेट ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम चला रहे हैं कि कैंसिल हो जाएगा एग्जाम, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत से यूट्यूबर्स करते हैं। दैट इज द गुड पार्ट अबाउट हिम, बिकॉज मुझे टाइम लगता है लोगों को समझने में, एंड ही इज रियली मोटिवेटिंग ऑल दी स्टूडेंट्स। मैंने देखा उनके यूट्यूब के जो वीडियोस हैं, इट इज अ वेरी गुड थिंग एंड वी नीड सच पीपल। आप लोग यूट्यूब में विशाल सर को भी मैंने आज ऐड किया था, विशाल जायसवाल, ही इज ऑल्सो देयर। और all these YouTubers are really helping students. There are other teachers also, those who are not in favor, उनका अलग एक view है, but they always support students. So so many people are there who are there to support you, but at the same time you all should study. And if anyone else would like to say anything, they are most welcome. Himanshu has left or what? Himanshu? Yes, ma'am. I think कुछ technical error आ रहा होगा, तो he'll join back. I'll add him. Hello, ma'am. Yes. Yes. Whosoever has any questions, please अपना नाम बताइए, अपना board preferably बता दीजिएगा and location बता दीजिएगा, so that we are clear. Ma'am, I'm from Maharashtra, state board student. मैम आपने जैसे बोला कि कल सीबीएसई का मैटर वो हाथ में लेंगे, तो मैम हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम 4 मार्च से शुरू हो रही है। तो मैम डिसीजन कब आ जाएगा फाइनल? लाइक हमारी स्टडी भी नहीं हो रही है एंड बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही है मैम एग्ज़ाम मतलब स्टडीज़ में। देखिए सीबीएसई के ऊपर डिपेंड करता है क्या डिसीजन वो लेंगे। दैट्स व्हाई वी आर रनिंग दिस कैंपेन टुडे, मोदी जी को हेल्प करने के लिए। वॉट एवर सीबीएसई विल डिसाइड, वो उसको काफी सारे बोर्ड्स फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाट मैनी स्टेट बोर्ड्स एंड आईसीएसई बोर्ड, एनआईओएस, दे फॉलो सीबीएसई। सो दैट्स व्हाई इवन जो जस्टिस खानविलकर हैं, हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इसलिए फॉरवर्ड किया हमारा जो मैटर है। व्हाई दे हैव सेंट इट टू जस्टिस खानविलकर? बिकॉज he has dealt with such kind of matters earlier also.
लास्ट ईयर भी हमारा उनके ही पास मैटर था, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको डील किया था। और इन द मीन टाइम देयर वेर सम स्टेट्स जिन्होंने बीच में एग्जाम कैंसिल भी किए थे, ऐसे भी हुआ था लास्ट ईयर। इसलिए बट स्टिल वी वुड टेल यू टू कीप स्टडिंग। आप लोग का भी मैटर अब कोर्ट में है, कोर्ट विल ओनली टेक अ कॉल एंड डिसाइड क्या उसमें होना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। एज ऑफ नाउ इट इज पॉजिटिव ओनली, बट अंटिल अनलेस पूरा डिसीजन आता है हम लोग कुछ बोल नहीं सकते कि क्या आपके फेवर में होगा कि नहीं। इसलिए मोदी जी को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं दैट मोदी जी प्लीज इंटरवीन। एंड नाउ इवन many people have come forward. Even Mr. Kevin has said that he will request our honorable PM to support students. तो लेट्स सी, आपके फेवर में इतने सारे लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होगा। बट कीप स्टडिंग, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। एंड डोंट डिस्ट्रैक्ट योर माइंड व्हेन द हियरिंग विल एंड, कब क्या होगा, क्या हो रहा है, व्हाई दे हैव नॉट इंक्लूडेड बोर्ड और व्हाट। That is the call of the judge. It's their call. We cannot fight with any judge that no sir, you first year state board. They are also aware that CBSE exams are in April and state board exams are in March. In fact, there are two states mein to exams are going on, Bihar and Madhya Pradesh. So even the judges are aware. मैम हमारे अभी मतलब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया, लेकिन हमारा अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ 12th का। Yes, that's why Honorable Supreme Court intervened na, when we said that syllabus is not complete. Still, state governments are going ahead and conducting exam. मैम काफी कुछ है जो इट इज देयर इन अवर प्ली। सो जस्ट विश कि जल्दी वो रिजल्ट मिले हमें। अगर बट आप मैम लोग कॉलेज जो भी एग्जाम हो रहे हैं आपके इंटरनल हो रहे हैं, वॉट एवर इज देयर, यू जस्ट गो एंड अपीयर। बिकॉज इफ इंटरनल असेसमेंट को अगर अप्रूवल मिलता है फ्रॉम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड इवन मोदी जी, इफ ही गिव्स अप्रूवल फॉर इंटरनल असेसमेंट, देन आई थिंक ऑल दोज मार्क्स आर गोइंग टू बी एडेड। सो जो भी आपके पेपर्स हो रहे हैं आप लोग उसको जाके दें अभी, प्री बोर्ड्स एंड प्रैक्टिकल्स। और मैम ज़्यादातर मतलब कॉलेज वालों ने हमको यूट्यूब के मतलब वीडियो प्रोवाइड करे, मतलब ऐसे सिखाया नहीं Yes, जाता। I know, Prathamesh. I know, that's why we have received all these complaints. That's why we have moved to court. जो आप प्रॉब्लम आज बता रहे हैं ये सब सभी इसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, एंड वी हैव हाईलाइटेड ऑल दिस। और मैम मतलब कंसेप्ट भी मतलब क्लियर नहीं ज़्यादा हमारे। हाँ, या आई नो देयर इज अ लर्निंग लॉस। देखिए लास्ट 2 इयर्स में, या 10th के बच्चे हों, बी इट 11th और 12th, और इवन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड, इवन आई हैव 2 चिल्ड्रन, सबको प्रॉब्लम हुई है, सबको, नॉट ओनली यू, वी ऑल आर। हम लोग सभी एक ही जो बोट में चल रहे हैं, ठीक है, तो सभी ने वो प्रॉब्लम फेस की है। Anuba ji, this is Pradeep Rawat again. Can I have few words? Say a few words. यस, Dear students, always remember, ऐसे जैसे कि आप लोग परेशान हैं, आप विश्वास करो हम आपसे भी ज़्यादा परेशान हैं। आप ये मत समझो कि आप अकेले ये फील कर रहे हो कि एग्ज़ाम में क्या होगा या नहीं होगा, कोर्ट से क्या फैसला आएगा, मोदी जी हेल्प करेंगे। बेसिक आइडिया ये है, मेरा ये मानना है, अगर नीयत साफ हो, इरादे नेक हो, तो एक एक कहावत है कि पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करने को दौड़ पड़ता है। जैसे आज की कॉल में लीजिए कि मिस्टर केविन हमारी मदद करने के लिए आए और उनका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है। तो बेसिक आइडिया ये है, अपनी मेहनत हम सारे करेंगे, चाहे वो एग्जाम की तैयारी में हो, चाहे वो कोर्ट में अनुभा जी के द्वारा हो, चाहे ट्विटर में हम सबके द्वारा हो। अपनी मेहनत सारे करते रहो, हम आपका साथ देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन आंखें बंद करके बैठने की जरूरत भी नहीं है। मेरा जैसे अभी एक पिछले स्पीकर ने भी कहा था कि ये मान के चलो कि फैसला अगर हमारे हक में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया तो हमने तो लाइफ में आगे बढ़ना ही है ना। ये जिंदगी का पहला और आखिरी एग्जाम नहीं है। इसके बाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम होंगे, उसके बाद आपके लाइफ में जब आप कभी इंटरव्यू देने के लिए, नौकरी करने के लिए जाएंगे, उसके एग्जाम होंगे, आप बिजनेस करना चाहेंगे उसके एग्जाम होंगे। जिंदगी पूरी की पूरी इम्तिहान है और हर दौर में आपको इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। तो इसके लिए लाइफ आपको एक प्रिपेयर होने का मौका दे रही है। आप अपनी जितनी हो सकती है, जितनी पॉसिबल है, हार नहीं मानिए, हार नहीं माननी। ये जस्ट अनदर एग्जाम है। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद
मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको याद भी नहीं होगा कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए थे, कितने मार्क्स नहीं अचीव किए थे। जितने भी हमारे स्पीकर हैं, जो पेरेंट हैं, उनसे आप पूछिए, नोबडी रिमेंबर्स कि उनके 12th में, 11th में या ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे। लाइफ मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। इसलिए अपने आप का, खुद का ख्याल रखें। आपकी वजह से आपकी फैमिली वाले खुश रहते हैं। अगर आपके चेहरे पे शिकन आती है तो आपके मम्मी पापा नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो कोशिश करो, आपका जो फर्ज है वो है एग्जाम की तैयारी भी करना, और जहां जहां पॉसिबल हो, जहां जहां आपकी रिक्वायरमेंट हो, वहां पे ट्विटर वगैरह पे कुछ समय के लिए आके हेल्प करना। लेकिन आप याद रखिए, ये जिंदगी का पहला और आखिरी इम्तिहान नहीं है। जिंदगी में बहुत इम्तिहान आने बाकी हैं। आपको ये इम्तिहान और स्ट्रांग बनाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि जिंदगी में जब आप अच्छा काम करने जा रहे हैं, आपकी मदद में सारे के सारे लोग जुट गए हैं, तो भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, या बड़ों के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो इसलिए चिंता ना करें, अपनी मेहनत आप करते रहें, अपनी मेहनत हम भी कर रहे हैं। भगवान चाहेगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। एंड जैसे एज ही हैज सेड कि वी डोंट इवन रिमेम्बर कि हमारे स्कूल में क्या मार्क्स थे, 5th स्टैंडर्ड, 9th, 10th, 11th, और इवन कॉलेज के आई डोंट रिमेम्बर कि मेरे कॉलेज में क्या मार्क्स थे। दैट टाइम वी यूज्ड टू जस्ट सी द रीड द न्यूज़पेपर कि हमारा रिजल्ट आया या नहीं आया। बट टुडे आई डोंट रिमेम्बर कि मेरे कॉलेज में क्या मार्क्स थे। सिमिलरली जो हम आगे बढ़ चुके हैं उसके बाद भी हमने बहुत से चैलेंजेस फेस किए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम एक एग्जाम है, उसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारी चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस आर लाइक एग्जाम्स ओनली। लाइफ में आपको बहुत से इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। तो ये तो सिर्फ मार्क्स है, मार्क्स के लिए इतना टेंशन मत ले। हम लोग भी लेते थे, ऐसा नहीं, आई नो, बट टुडे वी आर कनेक्टेड विद सो मेनी पीपल दैट वी कैन जस्ट मोटिवेट एंड गाइड यू कि किस तरह से हमने अपना टाइम निकाला है, किस तरह से हमने स्ट्रगल किया है। तो आप लोगों के लिए अच्छा है कि इतने सारे लोग हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं कि हाउ यू हैव टू मूव अहेड। तो ये सारी चीजें आप लोग माइंड में रखें और ध्यान रखें, और टेंशन बिल्कुल ना लें। लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और आती आती रही हैं और आती रहेंगी, आ भी रही हैं। तो दैट डज नॉट मीन दैट यू विल गिव अप। नेवर गिव अप एंड मूव अहेड, दैट इज व्हाट आई वुड से। बी इट इन योर स्कूल और कॉलेज और मे बी इन योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ और वॉट एवर। ठीक है, यू हैव टू फेस इट एंड मूव अहेड। मैम कल फाइनल डिसीजन आ जाएगा? हाँ यस, कल पूरा 100% आ जाएगा। आपके एग्जाम कैंसिल हो गए और आप बिल्कुल चीयर अप करो। इवन गॉड कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। आप एक एस्ट्रोलॉजर के भी से पूछो, इवन ही विल नॉट बी एबल टू आंसर। इवन जज को भी नहीं पता होगा कि वो कल डिसीजन आएगा कि नहीं, बिकॉज प्रोसीडिंग्स होंगी, उसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कोई दूसरी पार्टी आएगी, अपोज करेगी। इवन आई डोंट नो, नीदर द जजेस आर अवेयर, उनको भी नहीं पता होता है। तो बहुत बार कुछ स्टेट्स हैं या कोई बोर्ड्स हैं वो टाइम लेते हैं। लास्ट ईयर भी टाइम ले रहे थे तो दे डिडंट अलाउ। तो मुझे भी नहीं पता, इवन जज कैन नॉट आंसर दिस क्वेरी कि कल डिसीजन आएगा कि नहीं। इवन इफ आई वुड हैव बीन द जज ना, अगर आज मैं भी जज होती और आप मुझसे पूछते कि मैडम कल आप डिसीजन दे देंगे, तो आई वुड हैव सेड नो। इवन आई डोंट नो, विदाउट हियरिंग बोथ द पार्टीज आई कैन नॉट डिसाइड। वो जज की ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी वही है, यू हैव टू हियर बोथ द पार्टीज एंड देन टेक अ कॉल। ठीक है, तो जज नहीं डिसाइड कर सकते हैं एक दिन में, तो इट टेक्स टाइम। हाँ, अगर उनको डिसमिस करना होता तो आज डिसीजन आ जाता, बट लकीली दे हैव नॉट डिसमिस। बट डिसमिस बहुत बार होता है, पिटीशन एडमिट होने के बाद भी बहुत से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और उसके बाद फिर डिसीजन आता है। तो इसलिए आई ऑलवेज कीप टेलिंग यू कि आप लोग पढ़ाई करें, क्या डिसीजन होगा वी डोंट नो, कितना टाइम लगेगा वो भी नहीं पता है हम लोग को। इसलिए आप लोग पढ़ाई पे फोकस करें, रेस्ट जो भी कैंपेन जब भी होगा बस उसी टाइम पे आप लोग आएं। मैं ट्विटर स्पेस में भी ज्यादा आती नहीं हूँ। आज भी सिर्फ 10 मिनट्स मैंने बोला था, बट आई नो कि इतने डिस्कशन होने लगते हैं कि वो स्ट्रेच हो जाता है 1 आवर 2 आवर। इसलिए आप लोग यू फोकस ऑन योर स्टडीज, जो जो भी कैंपेन है उसको आप रन करें ड्यूरिंग दैट टाइम। बाकी टाइम आप लोग पढ़ाई करें, विच विल हेल्प यू। तो सुखपाल जी, विल एंड नाउ दिस स्पेस, मुझे लगता है प्रदीप जी वी शुड एंड दिस स्पेस नाउ। बच्चे भी Yeah,
काफी हमें भी बहुत काम करना है, कल हियरिंग है, आप लोगों को भी सब अपने अपने काम में बिजी हैं सब लोग। तो लेट्स एंड दिस स्पेस, और आप लोग जो भी किसी को और कुछ कहना है लास्ट maybe 5 Yes, minutes and ma'am. I then want to we'll say. wind I up. want to say. Yes, yes. मैम बट इन्होंने पेपर पोस्टपोन किए। पेपर पोस्टपोन करने के बाद भी अगर ये गैप हर एक पेपर के बाद गैप अप इन्होंने एक एक दिन का दिया है, तो सो हाउ विल यू कवर 16 चैप्टर इन वन डे? You are from which state? स्टेट बोर्ड, Which state? महाराष्ट्र। हाँ देखिए, महाराष्ट्र में अभी पोस्टपोन नहीं हुए एग्जाम्स, दे हैव नॉट पोस्टपोन, येट सॉरी टेकन। सॉरी, जो पेपर फरवरी में हुए थे ना, 20 फरवरी से 21 फरवरी से, तो उन्होंने 10 दिन लेट किया, मतलब जो डेट है उन्होंने वो आगे ढकेल दिए। यू आर टॉकिंग अबाउट प्री बोर्ड? यस यस। तो प्री बोर्ड आपके कब तक हैं? प्री बोर्ड अभी कल तक हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, नहीं तो प्री बोर्ड के बाद फिर बोर्ड है ना, बोर्ड के लिए तो मैटर कोर्ट में है, तो अभी कोर्ट को डिसाइड करने दें, उनको सारी चीजें बताई हुई है हमने, और नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट। यस बट जो 4 मार्च से अभी शुरू होने वाली है बोर्ड्स एग्जाम, तो उनके एग्जाम में भी एक एक दिन का गैप है, तो हाउ विल यू कवर 16 चैप्टर वो फिजिक्स? आई नो दैट, सी मोहित मोहित, ये सारी चीजें हमने रखी हैं, और इट्स नॉट ओनली विथ महाराष्ट्र, इवन अदर यस स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी कि 15 days या 20 days में वाइंड अप कर रहे हैं, बिहार में तो 2 weeks में हो गया उनका, और इवन एमपी में भी यही प्रॉब्लम है। इट इज ऑल ओवर इंडिया ये प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट जो है उनको जल्दी वाइंड अप करना है एग्जाम, दे वांट टू डिक्लेयर द रिजल्ट, इसलिए वो टाइम ही नहीं दे रहे हैं बच्चों को। ये पॉइंट यस हमने आज हाईलाइट किया था कि सर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जज वाज वेरी सरप्राइज कि हाउ कैन दे यस होल्ड एग्जाम विदाउट कंप्लीटिंग सिलेबस, ये उनका व्यू था आज। तो ऑल दैट विल यस बी डिस्कस्ड इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड लेट्स सी वो क्या अभी आता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग पढ़ाई पे ध्यान करें, फोकस ऑन योर स्टडीज, जो भी हो डिसीजन वो वहां से आएगा, और बाकी जो भी कैंपेन है जब भी टाइम होगा तभी आप लोग उस पे आए। वी आर यस यस। सी देखिए, हम हर लेवल से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? आप बताइए और क्या हम लोग कर सकते हैं? दिस इज द बेस्ट विच वी कैन डू, इससे ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर तो गॉड है, वो उनको भी हम लोग प्रे कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए यस यू हैव मैम। टू बी पॉजिटिव। इतने सारे सबने अभी आप लोगों को इतना अच्छा गाइड किया, लाइफ के बारे में बताया, एग्जाम्स के बारे में बताया, तो आप लोग चैलेंजेस को फेस करना सीखे, और जो भी होगा अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको कुछ प्रॉब्लम आई तो आपके रिजल्ट में वी विल जस्ट एंश्योर कि आपके एग्जाम हो भी जाते हैं तो रिजल्ट में दे शुड एटलीस्ट गिव सम काइंड ऑफ बेनिफिट, सम काइंड ऑफ रिलीफ टू ऑल द स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ इंटरनल असेसमेंट और ये सारी चीजें या कुछ उसमें ऐड करें। ऐसे नहीं एग्जाम हो गए तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम आएगी, वी विल एंश्योर कि एग्जाम के रिजल्ट के पहले आप लोग को रिलीफ मिल जाए। ओके, थैंक यू मैम। या Thank you very much, ma'am, for your time, and we understand आपको तैयारी भी करनी होगी, and आप आए, you took questions, आपने students को motivate किया, and you know, from the core of our hearts, from the students, parents, guardians, and all of us, thank you very much. Thank you, Dr. Ashish. Thank you, Pradeep ji. आपने भी बहुत बच्चों का साथ दिया, एंड कलेक्टिवली वी होप दैट वी ब्रिंग व्हाट बेस्ट is whatever the best possible judgment is there for the students. Thank you very much. Over to you, ma'am. Bye bye. थैंक यू सुखपाल जी, एंड आई थिंक आई विल नाउ लीव दिस स्पेस। आप लोग अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं यू ऑल कैन कंटिन्यू, बट रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स की ज्यादा टाइम आप लोग ना उसमें रहें, और जो भी कुछ इश्यूज हैं आपको और अगर कुछ कंसर्न है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई विल हैव टू टेक योर लीव, एंड आप लोग जो भी कैंपेन है वो करें, माई सपोर्ट इज देयर। Okay, ma'am. I'll just check with Dr. Ashish and Pradeep sir कि अगर आपके पास कुछ है तो, otherwise I have nothing to say. नहीं सर, ऑलमोस्ट सारी बात हो गई, आपने अच्छे अपने थॉट्स शेयर कर दिए, मैम ने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी, इट्स गुड। नाउ वी कैन वाइंड अप आई थिंक।
You can end the chat, ma'am. End the Twitter space, ma'am. Thank you. Wish you all the best. थैंक यू सुपाल जी, प्रदीप जी, कुछ लास्ट वर्ड आपको बोलने हैं बच्चों को तो, एंड देन वी विल एंड दिस स्पेस. थैंक यू एवरीवन एंड माय बेस्ट विशेस. Thank you, Anubaji, so much. Thank you, everyone. And Anubaji, please enter space. Thank you so much. Thank you. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड स्टडी वेल और कीप स्टडिंग, एंड जो भी आपका कैंपेन होगा ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली यू कम, एंड स्पेस भी हम लोग ज्यादा, मैं नहीं आती हूँ इसलिए रिक्वेस्ट किया, इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव कम. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, जो भी हो रहे हैं, प्री बोर्ड है, व्हाटएवर, एंड जो भी रिजल्ट आता है उसके लिए भी माय बेस्ट विशेस. विल ट्राई आवर बेस्ट कि बच्चों को जस्टिस मिले और मिलेगा भी. थैंक यू एवरीवन.